ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ایوان اسمبلی میں تصرف بل پر مباحث غیر مختتم، ندائی ووٹ سے بل منظور، BRS پارٹی کا احتجاج۔ چوتھا شہر تعمیر کیا جائے گا، مختلف پالیسیوں کا جلد ہوگا اعلان۔ اپوزیشن مشورے کی آڑ میں عوام کو گمراہ نہ کرے، اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ ریاست کو غیر ضروری بدنام نہ کریں، اچھے پروگرام بند نہ کریں۔ تصرف بل پر نظر ثانی کا KTR نے حکومت سے کیا مطالبہ۔ گٹکیسر میں سالگرہ تقریب کے دوران آبکاری ٹیم کا دھاوا، غیر قانونی شراب کی بوتلیں ضبط۔ پنجاگوٹا سرکل 1 کے اسسٹنٹ ٹیکس آفیسر سریدھر ریڈی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار، ACB کی کارروائی۔ اور حیات نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں شادی شدہ خاتون کی خودکشی، افراد خاندان کا پولیس اسٹیشن کے پاس دھرنا، ملزمین پر مبینہ حملے کی کوشش۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ QMax دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن QMax کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر، ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایسے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایسے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا، 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ جوہری کرافٹڈ جسٹ فار یو، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائیں۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جویلری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جویلری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جویلری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔
ایوان اسمبلی میں تصرف بل شور و غل کے باعث مباحث کو مختصر کرتے ہوئے ندائی ووٹ سے منظور کر دیا گیا۔ اسمبلی میں تصرف بل کے مباحث کے موقع پر وزیر اعلیٰ نے BRS پارٹی کی خاتون ارکان پر توہین کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ایوان کے وسط میں بیٹھ کر احتجاج کیا اور تالیاں بجانی شروع کی۔ تانا شاہی نہیں چلے گی کے نعرے لگاتے ہوئے ان کا مطالبہ تھا کہ BRS پارٹی کی رکن اسمبلی سبیتا اندرا ریڈی کو بات کرنے کا موقع دیا جائے، لیکن حکومت اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایوان میں شور و غل کو دیکھتے ہوئے اسپیکر نے مباحث کا اختتام کا اعلان کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کو جواب دینے کی ہدایت دی۔ ایوان میں اس دوران شور و غل جاری تھا، جسے دیکھتے ہوئے بھٹی وکرمارکا نے تصرف بل منظور کرنے کی درخواست کی، جس پر اسپیکر نے تصرف بل کو منظوری دیتے ہوئے ایوان کی کارروائی کو جمعرات 10 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ The question is the Telangana Appropriation Bill 2024 taken into consideration. There who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is for consideration. I shall now put the clauses to vote. There is no amendment to clause 2 and 3. The schedule clause 1 enacting formula and long title, and they are before the house. The question is that these who are the clause 2 and 3, the schedule clause 1 enacting formula and long title, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Clause 2 and 3, the schedule clause 1 enacting formula and long title to stand part of the bill. I shall now request the Deputy Chief Minister to move the motion for passing the bill. The question is that the bill passed. Those who are for the motion, please say ayes. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد سکندرآباد زیورآباد کے بعد چوتھا شہر بنایا جائے گا۔ ایوان اسمبلی میں تصرف بل پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ TR دیے گئے وقت کو ایوان کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ BRS کے لیڈر مشورے کی آڑ میں لوگوں کے ذہنوں میں گمراہ کن خیالات پیدا کر رہے ہیں۔ 10 سال حکومت کرنے والے 10 ماہ پورے کرنے پر حکومت پر تنقید کر رہے ہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا بدکما ساڑی اسکیم میں بدعنوانیاں ہوئی، ان کی حکومت نے بدکما ساڑیوں کے واجبات ادا کیے ہیں۔ بدکما ساڑیوں کے ٹھیکوں کو کچھ بے نامیوں کو دیے گئے تھے۔ انہوں نے سورت سے کلوگرام میں ساڑیاں خریدی اور حکمران جماعت کے رہنماؤں کو کمیشن دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پچھلی حکومت نے ایئرپورٹ تک MMTS پروجیکٹ کی اجازت کیوں نہیں دی، اس کے پیچھے کیا سازش ہے، سب کو علم ہونا چاہیے۔ کانگریس نے پرانے شہر کو BRS کی طرح استنبول کے طور پر ترقی دینے کا وعدہ نہیں کیا۔ حکومت نے اسکل یونیورسٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیاحت کا مرکز بنانا، حیدرآباد شہر میں عالمی معیار کا طبی مرکز قائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ پچھلی حکومت نے نکھت زرین کو نوکری دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن ناکام رہی۔ ہم نے محمد سراج کو گروپ 1 کی پوسٹ کی پیشکش کی۔ BRS حکومت نے فارما سٹی تیار کیا، ہم فارما ولیج بنا رہے ہیں۔ ہزاروں ایکڑ پر فارما کمپنیاں قائم ہو جائیں تو پورا علاقہ آلودہ ہو جائے گا۔ مصنوعی ذہانت کو زراعت سے جوڑنے کے لیے ایک طریقہ کار تیار کیا جا رہا ہے۔ موچلہ میں ایک عظیم شہر بنانا جو چوتھے بڑے شہر کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ میٹرو کی سہولت بھی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نئی زراعت، صنعت، IT اور ایکسائز پالیسیاں جلد متعارف کرائی جائیں گی۔ حکومت کو اپوزیشن کی حمایت کی کوئی امید نہیں۔ KCR حکومت میں پہلی میعاد میں ایک بھی خاتون کو وزیر کا عہدہ نہیں دیا گیا۔ اقلیتی طبقے کو وزیر کا عہدہ نہ دینے پر اپوزیشن مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہے۔ راج بھون میں تلنگانہ کے نئے گورنر چنچو دیو ورما کی حلف برداری تقریب منعقد ہوئی۔ گورنر چنچو دیو ورما کو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آلوک آرادے نے حلف دلایا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا، کونسل کے صدرنشین گتا سکھیندر ریڈی، ریاستی کابینہ کے وزراء، ارکان مقرنہ کے علاوہ اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ حلف برداری کے بعد گورنر نے سلامی لی۔
इससे पहले तेलंगाना के नए गवर्नर चिंशू देव वर्मा की आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर वजीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी जितेंद्र के अलावा फौज के अहम ओहदेदार और दूसरे मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली केटी रामाराव ने कहा कि हुकूमत रियासत को बदनाम न करे। ऐवान असेंबली में तसर्रुफ बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उनका कहना था, बीआरएस हुकूमत के अच्छे प्रोग्राम को बंद न करें। रियासत का दिवालिया निकल चुका है, इसकी तशहीर करना बंद करें। रियासत के लिए ये नुकसानदेह है। केटीआर ने कहा, रियासत की सरमायाकारी पर भी इसका असर पड़ेगा। केटीआर ने कहा, तेलंगाना की तरक्की का खुलासा शो इकोनॉमिक की किताब के आदाद शुमार से लगाया जा सकता है। 10 साल अवाम ने मौका दिया था और अब अपोजिशन का रोल अदा करने की जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी अपनी 6 गारंटियां भूलकर खजाने की तलाश कर रही है। असासे वाली तेलंगाना को मखरूज तेलंगाना बताकर तशहीर की जा रही है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, केटीआर तालीम याफ्ता है और ये आर्टिफिशियल है, लेकिन इंटेलिजेंस सिफर है। उनका कहना था कि वो सरकारी स्कूल में तालीम हासिल किए हैं। हुकूमत को चीरफाड़ करने का दावा करने वाले अपोजिशन के लीडर गायब है। हम ब्लड प्रूफ के साथ ऐवान में सामना करने के लिए आए थे। 10 साल से अवाम देख रहे हैं। ये देखकर अवाम ने अपोजिशन का ओहदा दिया। अगर केटीआर अपने पीछे बैठी बहनों पर भरोसा करेंगे तो अपोजिशन का मुकाम भी चला जाएगा। इस पर केटीआर ने कहा कि उन्होंने 2 मास्टर डिग्री हासिल की हैं और गुंटूर से इंटरमीडिएट की तालीम हासिल की, अपने बलबूते पर मुलाजमत हासिल की और उनके पास इंटेलिजेंट होने का सर्टिफिकेट मौजूद है। केटीआर ने कहा, 18 साल से वो रेवंत रेड्डी को जानते हैं। रेवंत रेड्डी खुशकिस्मत हैं कि कम उम्र में वजीर आला बन गए। साबिक वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने ऐवान असेंबली में वजीर आला पर इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी उनको बार बार निशाना क्यों बना रहे हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए वजीर आला ने पेशकश की थी, जिस पर वजीर आला ने मदाखलत करते हुए कहा, जब ऐवान में शख्सी गुफ्तगू मंजर आम पर आ चुकी हैं तो इसके बारे में मजीद खुलासे की जरूरत है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2018 में वो कांग्रेस में शामिल होने के बाद सबिता इंदिरा रेड्डी ने मलकाजगिरी हल्के पार्लियामेंट से मुकाबला करने को कहा और यकीन दिलाया कि उनकी कामयाबी के लिए काम करेंगी, लेकिन उन्होंने धोखा देकर केसीआर की बातों में आकर बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की और वजीर बन गई। उसको देखकर उन्होंने केटीआर को मशवरा दिया कि केटीआर के पीछे जो बहन बैठी है उन पर भरोसा करोगे तो डूब जाओगे। इसके बाद ऐवान में शोरगुल शुरू हो गया। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मदाखलत करते हुए कहा, जब वो अपोजिशन के ओहदे पर थे उस वक्त उन्होंने सबिता इंदिरा रेड्डी से दरखास्त की थी कि वो पार्टी छोड़कर ना जाएं, लेकिन सबिता इंदिरा रेड्डी दलित लीडर का ख्याल किए बगैर पार्टी छोड़कर चली गई। उस वक्त कोई तकलीफ का इजहार नहीं किया। आज जज्बाती होकर गुफ्तगू कर रही हैं। इसके बाद ऐवान में शोरगुल शुरू हो गया, जिसे देखकर स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। కేసీఆర్ ఇంటి మీద వాళ్ళ కాకి నా ఇంటి మీద వాళ్ళతో కాల్ చేస్తాడు. ఎంతమంది ఉన్నారు అధ్యక్ష? ఇప్పుడు అక్కడ ఎందుకు చేర్చుకున్నారు అధ్యక్ష? గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంటే గుండె మీద చేసుకొని చెప్పాలి అధ్యక్ష. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఆ రోజు నేను అక్కగానే ఆశీర్వదించిన, ఆ రోజు పార్టీలోకి వస్తున్నప్పుడు ఒక అక్కగా ఆశీర్వదించిన, బాబు నువ్వు చాలా పెద్దగా ఎదుగుతావు, ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అవుతావు, రాయి పార్టీలకని ఆహ్వానించిన నేను. ఈ రోజు మరి నన్నెందుకు కక్ష తీర్చుకుంటున్నాడు నాకు అర్థమైతలేదు. ప్రతిసారి ప్రతి అసెంబ్లీలో ఒక్క నిమిషం ఆగండి చెప్పనియండి. ఒక ఆడబిడ్డ బాధ అవుతుంటే వినే స్థితిలో లేరా? వినే స్థితిలో లేరా మీరు? ఎందుకు నన్ను టార్గెట్ చేసిండు? ఒక్క మాట్లాడి చెప్పండి అధ్యక్ష. ముందు కంట్రోల్లో పెట్టండి అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మాట అన్నారు కేటీఆర్ గారిని, నీ వెనక కూర్చున్న అక్కలను నమ్ముకోవద్దు, మోసం చేస్తున్నాను. ఏం మోసం చేసినాం అధ్యక్ష? ఏం ముంచినాం అధ్యక్ష? ఈయనను ముంచినాం అధ్యక్ష. ఈయనను బతిన్లాడి పార్టీలోకి రా తమ్ముడు అని చెప్పి, నువ్వు వస్తే భవిష్యత్తులో ఈ పార్టీకి నువ్వు ఆశాకిరణం అవుతావు అని చెప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించినా లేదా గుండె మీద చేసుకొని చెప్పమనండి అధ్యక్ష. ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నావు? ఏం మోసం చేశాం? ఇప్పుడు కాదు అధ్యక్ష, ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు కూడా నా కాన్ఫిడెన్స్ అట్లే అన్నారు అధ్యక్ష. సభదాకా పొద్దున ఒక మాట మాట్లాడుతుంది. ఏం మాట్లాడినాం? పొద్దున ఒక మాట, రాత్రి ఒక మాట. ఎవరిని అవమానిస్తున్నావు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ముఖ్యమంత్రి గారు. ఎందుకు అవమానిస్తున్నావు? ఎందుకు కక్ష? ప్రతిసారి టార్గెట్ చేస్తున్నావు.
ఈరోజు ఏం మోసం చేసినాం మేము ఆడబిడ్డలం విత్డ్రా చేసుకోవాలి అధ్యక్ష. మంత్రి గారు సార్ వాళ్ళు కూర్చోబెట్టండి సార్. వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళు లేస్తారు. కూర్చోండి. వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళు లేస్తారు. ఏది మంచి ప్రాక్టీస్ కాదు. వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళు లేస్తారు సార్. కూర్చోబెట్టిరు అధ్యక్ష. ప్రాక్టీస్ కాదు. కూర్చోబెట్టిరు అధ్యక్ష వాళ్ళని. కౌశిక్ రెడ్డి గారు కేటీఆర్ గారు కూర్చోబెట్టిరు అధ్యక్ష. కూర్చోండి ప్లీజ్ మీరు కూర్చోండి. మాట్లాడుకొని పోయి టీఆర్ఎస్ లో చేరింది అధ్యక్ష. తమ్ముడుగా నన్ను పిలిచి మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ లో ఎన్నికల్లో పోటీ చేయమని నన్ను ప్రోత్సహించి పార్టీ నన్ను ఎన్నికల్లో అభ్యర్థిగా నిర్ణయించిన తర్వాత కేసీఆర్ మాటలకు అధికారం కోసం కాంగ్రెస్ ను వదిలి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరి మంత్రి పదవి పొంది తమ్ముని మోసం చేసింది కాబట్టి ఈ రోజు నమ్మద్దు అని కేటీఆర్ కి చెప్పిన అధ్యక్ష. बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने खातून अरकान असम्बली के खिलाफ गैर अखलाकी गुफ्तगू की है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बहनों पर भरोसा करेंगे तो जिंदगी बस स्टैंड पर आ जाएगी। ये बीआरएस अरकान की तौहीन नहीं बल्कि तेलंगाना खवातीन की तौहीन है। ये वजीर आला रियासत के लिए अनफिट है। हमारे अरकान को अवाम ने कामयाब बनाया। वजीर आला की तरह पार्टी बदल कर ओहदा हासिल करने वाले नहीं है। वजीर आला रेवंत रेड्डी को चाहिए कि वो गैर मशरूत माफी मांगे। उन्होंने कहा कि वजीर आला को बर्दाश्त करने का वक्त खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ रियासती वजीर सीतक्का ने कहा बीआरएस पार्टी ने 10 साल अवाम को गुमराह किया। ऐवान असम्बली में तसर्रुफ बिल की मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उनका कहना था दलित को वजीर आला बनाने का वादा किया गया। घर घर मुलाजमत देने का वादा करके 10 साल उस्मानिया यूनिवर्सिटी नहीं जा सके। 10 साल तक कोई मुलाजमत नहीं दी। आंगनवाड़ी वर्कर्स के वालदैन के वजीफे को बर्खास्त कर दिया। धरनी के नाम पर गरीब अवाम को अराजी पट्टे नहीं दिए गए। बीआरएस पार्टी की हरासानी की वजह से अवाम ने हमें इख्तिदार दिया। सीतक्का ने कहा कि 5,600 अफराद को डबल पेंशन दिया गया। 25,000 करोड़ रुपए रैतु बंधु की रकम काश न करने वाले किसानों को दी गई। गरीब अवाम को एक मकान तक नहीं दिया गया। कांग्रेस हुकूमत में अवाम खुश हैं। एक के बाद एक गारंटी पर अमल हो रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चीफ सिटी प्लानर एम राजेंद्र प्रसाद नायक का तबादला कर दिया गया है। डायरेक्टर प्लानिंग टू हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के श्रीनिवास को उनकी जगह चीफ सिटी प्लानर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुकर्रर किया गया है। एम राजेंद्र प्रसाद नायक को के श्रीनिवास की जगह डायरेक्टर प्लानिंग टू हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नजमुनस एम दाना किशोर ने हुक्मनामा जारी किया है। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि मुफ्त बस सर्विस स्कीम कामयाब होने से अपोजिशन को तकलीफ हो रही है। ऐवान असम्बली में उनका कहना था कि मुफ्त बस सफर सर्विस को बदनाम करने की कोशिश करते हुए खवातीन के सफर के बजाय दीगर काम अंजाम देने वाले वीडियोस को वायरल किया जा रहा है। उन्होंने इस तरह की वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का स्पीकर से मुतालबा किया। ऐवान असम्बली में बीआरएस पार्टी की रुकन असम्बली सबिता इंद्रा रेड्डी की मुबैना तौहीन पर बीआरएस पार्टी के अरकान असम्बली ने ऐवान में एहतजाज किया और नारेबाजी की। रुकन असम्बली सबिता इंद्रा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी चोर की तरह भाग गए। पार्टी तब्दील करने का हक सिर्फ आप लोग को है। सबिता ने कहा कि उनके खानदान की एक तारीख रही है। राजशेखर रेड्डी उनको सियासत में लेकर आए। ऐवान में खवातीन को बात करने का मौका तक नहीं दिया गया। उन्होंने जज्बाती होकर कहा कि रेवंत रेड्डी को वजीर आला का ओहदा 4 करोड़ अवाम ने दिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा था कल तक केसीआर के घर पर अगर अभी गुजरेगा तो उसको नहीं छोड़ेंगे। आज केसीआर के टिकट पर कामयाब होने वालों को बाजू में बिठा रखा है। रियासती असम्बली के पास चारशंबे को उस वक्त हल्की कशीदगी देखी गई जब तलबा तंजीम पीडीएसयू और पीवाई के कारकुनों की तालीम के शोबे के बजट में इजाफे को लेकर एहतजाज किया। तलबा के आगे बढ़ने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एहतजाजी तलबा तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। दूसरी तरफ मिड डे मील वर्कर्स की तरफ से भी यहां पर कांग्रेस के दफ्तर एआईटीयूसी के पास से धरना दिया गया। एआईटीयूसी के अरकान भी इसमें शामिल थे। एहतजाजी वर्कर्स का कहना था कि उनसे इंतखाबात के दौरान जो वादे किए गए
उन वादों को फौरी पूरा किया जाए। श्रीशैलम डैम के जुमला 10 दरवाजे खोल दिए गए हैं। मुसलसल पानी के इनफ्लो को देखते हुए आबपाशी हुकाम की तरफ से यह फैसला किया गया था। 3.59 लाख क्यूसिक पानी को छोड़ा जा रहा है। मुकामी हुकाम ने बताया कि सयाहों की बड़ी तादाद यहां पर जमा हो रही, इसके पेश नजर ट्रैफिक के मौसर बहाव के लिए भी इक़दाम जारी हैं। श्रीशैलम से पानी नागार्जुना सागर को छोड़ा जा रहा है। 12 की मिजिमला पहले 3, फिर 7 और अब 10 गेट खोल दिए गए हैं। इतला है कि आंध्रा के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू कल श्रीशैलम डैम का दौरा करते हुए पूजा करेंगे। हयातनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शादीशुदा खातून की खुदकुशी वाक़े के बाद अफराद खानदान की तरफ से पुलिस स्टेशन के पास एहतजाज किया गया। अफराद खानदान का इल्जाम था कि मुतवफ़िया के ससुराल वालों ने कत्ल के बाद खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की है। पुलिस स्टेशन के पास एहतजाज के दौरान धक्कम पेल देखी गई और जिन मुलजिमीन को पकड़कर पुलिस लाई थी उन पर मुबैना हमले की कोशिश की गई। इस एहतजाज के दौरान पुलिस के 5 मुलाजमीन भी जख्मी हुए हैं। हयातनगर पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। महकमे इंसदाद और रिश्वतस्तानी ACB ने पंजागुट्टा सर्कल के असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर श्रीधर रेड्डी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। ACB के मुताबिक श्रीधर रेड्डी ने श्रीकांत नामी शख्स से ऑडिट के काम के सिलसिले में 2 लाख रुपए की रिश्वत तलब की थी। शिकायत मिलने पर ACB ने कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और श्रीधर रेड्डी को रंगे हाथों पकड़ लिया। तेलंगाना एक्साइज प्रोबेशन डिपार्टमेंट की टीम ने घटकेसर में सालगिरह की तकरीब के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली गैर कानूनी शराब को जब्त किया है। बताया गया कि यह पार्टी बिग बॉस तेलुगु में हिस्सा ले चुके शेख महबूब की सालगिरह के लिए मुनक्किद की गई थी। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर एक्साइज की टीम ने कॉन्टिनेंट लग्जरी नामी एक रिसोर्ट पर धावा किया। शराब की तकरीबन 42 बोतलें और विस्की की 1 लीटर की बोतल को जब्त किया गया। इस सिलसिले में के सुधीर कुमार और शेख सुभानी के खिलाफ भी केस दर्ज किया है, लेकिन शेख महबूब का यह कहना था कि उनके दोस्तों ने उन्हें सरप्राइज देने के लिए इस पार्टी का एहतमाम किया था और वो इस पार्टी के बारे में नहीं जानते। नशे की हालत में ड्राइविंग ने इंजीनियरिंग के तुलबा को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। बताया गया कि जुबली हिल्स के इलाके में बीटेक का तालिब इल्म अपने दोस्तों के साथ कार ड्राइव कर रहा था। जुबली हिल चेकपोस्ट के पास गाड़ी बेकाबू होकर पहले फुटपाथ पर चढ़ गई, उसके बाद टेलीफोन के खंबे से टकराई और फिर दरख्त से टकराकर उलट गई। इस हादसे में 2 तुलबा जख्मी हुए हैं जो बीटेक के तालिब इल्म बताए गए हैं। उन्हें करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुराद नगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी,
माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्य नगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन, माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। ऐवान असम्बली में तसर्रुफ बिल पर मुबाहस गैर मुख्ततम, निदाई वोट से बिल मंजूर, बीआरएस पार्टी का एहतजाज। चौथा शहर तामीर किया जाएगा, मुख्तलिफ पॉलिसियों का जल्द होगा ऐलान। अपोजिशन मशवरे की आड़ में अवाम को गुमराह न करे, असम्बली में वजीर आला का खिताब। रियासत को गैर जरूरी बदनाम न करें, अच्छे प्रोग्राम बंद न करें। तसर्रुफ बिल पर नजरसानी का केटीआर ने हुकूमत से किया मुतालबा। गटकेसर में सालगिरह तकरीब के दौरान आबकारी टीम का धावा, गैर कानूनी शराब की बोतलें जब्त। पंजागोटा सर्कल 1 के असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर श्रीधर रेड्डी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, एसीबी की कार्रवाई। और हयातनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में शादीशुदा खातून की खुदकुशी, अफराद खानदान का पुलिस स्टेशन के पास धरना, मुल्जिमीन पर मुबैना हमले की कोशिश। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।